علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق سبحان اللہ خلق الانسان من علق صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف پڑھیں۔ پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ نے دیکھا ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن پاک کی 2 سورتیں پڑھی۔ جی بہت اچھا، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ اس بچی کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے ماشاء اللہ، اور بچہ ابھی پڑھ رہا ہے۔ ہم ہیں، آپ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے رکھے ہیں۔ اگر ان بچوں سے پوچھ لیا جائے کہ قرآن پاک میں کتنے سپارے ہیں تو انہیں پتہ نہیں، اور موبائل کے بارے میں اگر پوچھ لیا جائے تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب کو پتہ ہوگا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ماں باپ کی ہے۔ آج امام صاحب قبلہ اور اس کے والدین نے کہ حضرت ہمارے بچوں نے قرآن پاک پورا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھا دیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ناظم صاحب کی محنتیں اور کاوشیں، وہ میں نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اس کو پڑھایا۔ اب اس سے آپ نے کیا سبق لیا؟ آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو۔ مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں، اگر بچی قرآن پاک پڑھے گی، جو جس رنگ میں ہوتا ہے اسی رنگ میں وہ رنگتا ہے۔ بے شک بے شک، بولو ہے کہ نہیں؟ اگر 5-7 بچے اگر کھیلتے ہوں جی تو ایک بچہ بھی ان میں کھیلنے لگے گا، اور اگر 5-7 بچے اگر پڑھنے لگے ہوں کیا بات ہے، تو کھیلنے والا بچہ بھی کیا کرنے لگے گا؟ پڑھنے لگے گا۔ اب صحیح بات آپ یہ بتائیں، اتنی چھوٹی بچی، یہ 10 سال کی ہوگی، جی یہ بچی اگر اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا جیسے اور بچیوں کے ہاتھ میں ہے، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے موبائل چلانا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو سب کیا آئے گا؟ وہی فیشن سامنے نکل کے آئے گا، وہی طریقے کے کپڑے نکل کے آئیں گے، سب وہی غیروں کا کلچر نکل کے آئے گا۔ ایڈورٹائز اس میں جو دیتے ہیں اتنے گندے دیتے ہیں کہ مت پوچھو۔ کمپنیاں اس لیے تاکہ ہمارے کپڑے زیادہ بکے۔ جی اس میں ننگا پن اب 1 دن دیکھ رہی ہے، 2 دن دیکھ رہی ہے، چھوٹی بچی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہی اچھا ہے، کہ پوری دنیا اس کو پسند کر رہی ہے، یہی اچھا ہوگا۔ اب ماں بھی وہی دیکھ رہی ہے، بہن بھی وہی دیکھ رہی ہے، وہ بھی وہی دیکھ رہی ہے، پورے کے پورے گھر کے کپڑے بالکل بدل گئے۔ باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، اور ایک کا بھی نہ کھانے کا ڈھنگ، نہ پہننے کا ڈھنگ، نہ پینے کا ڈھنگ، نہ اوڑھنے کا ڈھنگ، نہ چلنے پھرنے کا ڈھنگ، کسی اللہ والے یا اللہ والی سے میل نہیں کھاتا، سب کے سب ان شیطانوں سے میل کھاتے۔ بولو نہیں ایسا کیا؟ ارے بھائی، دنیا جو آگے بڑھی ہے
सिर्फ तुम्हारे कुरान पाक को सामने रख के आगे बढ़ी। बेशक हमारा जो मजहब इस्लाम है इतना शानदार, इतना पाकीज़ा, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इसका जवाब दुनिया में है ही नहीं। बेशक बेशक हक है। इस इस्लाम ने खाने का कानून अगर दिया तो वो लाजवाब, पहनने ओढ़ने का कानून दिया तो वो लाजवाब, क्या बात। अगर इस इस्लाम ने बोलने चालने का तरीका बताया तो वो भी लाजवाब। इस्लाम ने ये तरीका बता दिया, ये बताया है इस्लाम को अगर आप फॉलो करो तो ये तरीका मिलेगा। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई तकलीफ दे चीज पड़ी है, कांटा पड़ा है, हड्डी पड़ी है, पत्थर पड़ा है, पाँव में ठोकर लगे, किसी को तकलीफ हो जाए, तो इस्लाम ये कहता है कि इसको उठा करके एक तरफ रख दो ताकि आने वाले को तकलीफ ना हो। जब इस्लाम ये तालीम देता है जी जी तो अब बताओ, बाप को सताना, भाई को सताना, पड़ोसी को सताना, जी, जी। इसको सताने की तालीम कहां से हो सकती है? बहुत अच्छी बात है हजरत, अच्छा पैगाम। बोलो हो सकती है क्या? नहीं। कितना प्यारा। औरतें, अल्लाह, औरत के माना ही सतर है, जी छुपाना। जी हक है। वो कपड़े जो दिखाने वाले होते हैं वो बेचने वाले नहीं होते, सामने टांग दिए जाते हैं, उन पे धूल चढ़ रही है, गर्द चढ़ रही है, सब दिखाने के, उन्हें कोई खरीदता नहीं, अच्छे अंदर से निकाल के दिए क्या जाते बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा शायर। मगर एक जहन बदल दिया हमारी बहनों का भी, हमारी माओं का भी जहन बदल दिया है, हमारी बहनों का भी जहन बदला हुआ है। कोई भी अगर बाल काटेगी तो वो अपने सामने सैयदा फातिमा को नहीं रखेगी, हजरत सैयदा ज़ैनब को नहीं रखेगी, वो तमाम इस्लाम की शहजादियां उनको सामने नहीं रखेगी कि नबी की बेटी ने कैसे बाल काटे, गौसे पाक की माँ ने कैसे बाल काटे, गरीब नवाज की बेटी ने कैसे बाल काटे, हजरत अली की बेटियों ने कैसे बाल काटे, हसन और हुसैन की बेटियों ने कैसे बाल काटे। ये सारे वली, इनके घर की शहजादियां जो अल्लाह ने उन्हें विलायत से नवाजा था, उन्होंने कैसे बाल काटे एक को भी पता नहीं है। मोबाइल में देख के ये देख रही है, बंबई में किसी हीरोइन फिल्म में जो आती है उसने बाल कैसे काटे, वैसे ही हमारे घर में कर रहे हैं अब। बेशक बेशक यही बात है, बिल्कुल वही तौर तरीका हमारे यहाँ आ गया। बोलो है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर दिया, चेंज। जी बिल्कुल सही। अब उसको वो लगते ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा मजहब ये कहता है, हमारा तौर तरीका ये है कि बाल लहराना अलग, दिखाना अलग। अगर कोई बहन इतना बारीक दुपट्टा ओढ़े जिससे बालों की रंगत जाहिर होती हो, अंदर से कालापन दिखाई देता हो, तो इस्लाम ये कहता है ऐसा दुपट्टा ओढ़ कर उससे नमाज पढ़ना जायज नहीं। बेशक हक है, बहुत अच्छी बात। और ये क्या दुपट्टा ओढ़ेगी, इसने तो दुपट्टे को सजा दे दी है, इधर टांग देती है पिन लगा करके, ऐसे करके। सही बता रहे हो मैं? इस्लाम ने क्या तरीका बताया था यार, कितना प्यारा मजहब है हमारा, कितना खूबसूरत मजहब है हमारा। बच्चों तवज्जो रखो, कितना शानदार मजहब है हमारा। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, गौर करो, माए सुने, एक माँ का तरीका तुम्हें दे करके जाना चाहता हूं। माए सुने, अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक करें, क्या तरीका करें, एक मां बताऊंगा। वो भी मां कौन है? पूरी दुनिया के मोमिनों की मां है,
جن کا نام حضرت عائشہ ہے. بیٹا ادھر آؤ, ادھر ہاتھ دکھاؤ, دیکھو کتنی انگوٹھی ہیں یہ, اتارو انہوں کو سے اتارو. ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے, وہ بھی چاندی کی 4.5 ماشا, 5 10 انگوٹھی. اگر میں ہی نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا بولو؟ بیٹا میں تمہاری بے عزتی نہیں کر رہا ہوں, یہ مت سمجھیو, تم اسلامی رشتے کے میرے بھائی ہو, اس لیے سمجھا رہا ہوں تمہیں. توجہ ہے نا؟ پوری دنیا کے مومنوں کی ماں, ایک کی نہیں, قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں, وہ ماں, میری بہنوں, میری ماں سن لے, ہماری ماں ہے, آپ کی ماں ہے, آج کی ماں ہے. معلوم ہے کیا؟ معلوم ہے اگر کہیں پہ شادی اور ناظم صاحب قبلہ یہ بڑی بڑی کانفرنس کو ڈیل کرتے ہیں, اللہ نے اتنی کم عمر میں حضرت زبان میں وہ سلاست دی ہے, میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے, اور برکتیں عطا, اخلاق وہ لاجواب, اللہ سلامت رکھے. سنو, ہماری ماں بہنیں سنیں, اگر کسی کے یہاں شادی ہو تو بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑائے گی, بہو کو نہیں اڑائے گی, بھانجی بھتیجی کو نہیں اڑائے گی, دھکا مکی کرتے ہوئے سنگار دان کے سامنے, شیشے کے سامنے گھنٹوں چہرے کی ملائی اور بالوں کی رگڑائی خود کرتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ہماری ماں ہے, ہماری. مگر میں پوری دنیا کے مومنوں کی ماں کی بات کر رہا ہوں. او بہن سنے, وہ ماں کون ہے؟ وہ میرے نبی کی بیوی ہے جن کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اللہ, یہ عالمہ ہے, فاضلہ ہے, متقیہ ہے, پرہیزگار ہے, اور مومنوں کی ماں ہے. بے شک, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. یہ مومنوں کی ماں ہے, ماں. ان کے سامنے ایک لڑکی آ گئی. ان کے سامنے کون آئی بولو؟ ایک لڑکی, جوان لڑکی, مگر پورے کپڑے پہنے ہوئی تھی. دوپٹہ اتنا باریک تھا, اتنا باریک تھا کہ اس سے بالوں کی رنگت دکھائی دے رہی تھی. یہاں کے جسم کا جو کلر تھا وہ دوپٹے کے اندر سے چلک رہا تھا. مومنوں کی ماں کو جلال آ گیا, جلال آ گیا, اور آنے کے بعد اس دوپٹے کو پکڑا, پھاڑ کے پھینک دیا اور موٹا دوپٹہ دے دیا, اور کہنے لگی بیٹی, عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اس کی عزت ہوتی ہے. مسلمانوں کی بیٹی جسم دکھانے کے لیے نہیں بلکہ جسم چھپانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. بے شک, بے شک, زندہ باد, زندہ باد. یہ ہے مومنوں کی ماں. اور آج ان بچوں کی ماں مارکیٹ جاتی ہے تو خود خرید کے لا رہی ہے 5 10 سال کی بچیوں کے ٹاپ اور پینٹ, جنس کی پینٹ خرید کے لا رہی ہے, جنس کی پینٹ. اللہ اللہ, ذرا غور کریں. اب قرآن کیا کہتا؟ قرآن کی بھی تو سنو, آیت پڑھ دوں؟ جی جی, پیچھے والوں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक बेशक। जहन्नम की आग से बचाओ। बताऊं कैसे? बताओ कैसे? मेरे नबी ने सहाबा के दरमियान फरमाया, अगर जिसकी 3 बेटियां और वो सही इस्लाम के तौर तरीके पर परवरिश कर दे, जन्नत का हकदार हो जाता है। 3 बेटी। एक सहाबी के दिल में ना बात थोड़ी सी आने लगी, यार किसी की 2 भी तो होंगी। अरे भाई होती है। वो सहाबी खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे, आका अगर इजाजत हो तो कुछ बोलूं। मुस्कुराहट चेहरे पे थी। कहा आका इजाजत हो तो बोलूं। नबी ने फरमाया बोलो बोलो, मालूम है क्या बोलना चाहते हो। कहा बोलो। वो सहाबी कहने लगे, आका 3 बेटियां हो तो जन्नत का हकदार, और अगर किसी के पास 2 ही बेटियां हो तो उसका क्या होगा। नबी फरमाते, अगर 2 बेटियां इस्लाम के तौर तरीके पर उनकी जिंदगी गुजार दे तो वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी और खड़े हो गए और वो कहने लगे, आका अगर किसी की 1 हो तो, अगर किसी की 1 हो तो। नबी ने फरमाया, अगर वो भी इस्लाम के तौर तरीके पर अपनी बेटी को संवार दे तो वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार हो रहा। किसकी वजह से बोलो? बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। एक हदीस इसके पलट में सुनाओ हाशिम साहब। जी बिल्कुल। शाकिर भाई जी। एक हदीस पलट के नबी ने फरमाया, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। बेशक। हदीस नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे जन्नत में नहीं जाएंगे। इधर ध्यान रखना, 3 बेटियों की 1 बेटी 2 बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। और इधर आका क्या फरमा रहे हैं? 3 तरह के लोग ऐसे जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से एक वो है जो दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता जन्नत में? बोलो। दयूस। तुम सोच रहे हो किसी का नाम तो नहीं है कहीं है? किसी गांव का रहने वाला तो नहीं है? मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला आ रहे हैं, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला नईमी, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर तो हो गई ना? अच्छा आपकी आइए हजरत। बहुत शानदार खतीब हैं, बहुत शानदार आलिम हैं, अखलाक के धनी हैं, किरदार के आला हैं। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। तकरीर हो चुकी है, अब मेरी सुनने आए हैं। सब इनको भी याद है जो मैं कहूँगा, सब इनको भी याद है, सारे उलमा को याद है, मगर इसलिए आए पता नहीं कब किसका कौन सा जुमला कबूल हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। समझ के उन्हें धकिया के गिरा मत दियो। अच्छा तवज्जो है। नबी ने फरमाया अगर उनकी परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार, और इधर फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है? खोलूं बताऊं? दयूस वो शौहर है जो अपनी नई नई शादी, नई नई बीबी को साड़ियाँ पहना के, फैशनीले कपड़े पहना के, अरे साहब बेपर्दा घुमाता फिर रहा, मेलों में ठेलों में झूले झुलाए फिर रहा, और वो दोस्तों से मिल रही है, हेलो हेलो, हाथ मिल रहे हैं जनाब,
समझे, बेपर्दा घूम रही है, ठेले पे खड़े हो गए, मुंह फाड़ फाड़ के वो खा रही है सोट बताजे, समझे, और बेपर्दा घूम रही है, ये मोटरसाइकिल संभाल लिया, वो मोहल्ले को संभाल रही है, समझे, ये घूम रही है बेपर्दा, उसका तौर तरीका इस्लाम के खिलाफ। अगर शौहर उसके तौर तरीके से, उस पहनावे से अगर राजी है तो ये शौहर दयूस है, और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मैं तो हदीस पढ़ रहा हूं, तुम खुद देख लियो। एक जगह तो एक साहब नई नई शादी आई थी, बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले मजार पे लेके जा रहे हूँ, समझे, वो आगे आगे घूम रही थी और ये पीछे से पल्लू पकड़े हुए मजार पे 7 चक्कर लगा रहा। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, हद हो गई ये साहब। और कौन है दयूस? दयूस वो माँ और बाप है। कौन माँ बाप है? जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिनकी बेटियां शरीयत के खिलाफ चल रही हो, शादी मेलों टेलों में बेपर्दा चुटियां दिखा रही हो, इधर आदर तक रही हो, गैरों से बातें कर रही हो, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में चैटिंग कर रही हो, गैर लड़कों से बातें चल रही हो, और ये माँ बाप को पता हो, राजी हो, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस जन्नत में, अरे वाह, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है और बेटियों की वजह से रुकावट भी हो रही है। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ रही है सबके? अच्छा, जोश में और होश में दोनों हो, इम्तिहान ले लूं तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाहता है? ले लिया इम्तिहान, ले लिया, कोई बात नहीं। मैं पहले कह रहा था, मौलवियों ने, हम जैसे मौलानाओं ने और शायरों ने ना तुम्हें हाथ उठवाते 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 सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम देखते ही नहीं हो, कहने वाला पूरी बात नहीं बोलता और तुम उठाए पड़े। अल्लाह के बंदो सुन तो लिया करो पहले। तो ये 2 रास्ते, और आगे चलो, अभी खत्म नहीं हुआ, उसको रोक कर इधर ही लाऊंगा। दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता बोलो? शौहर भी हो गया, बाप भी हो गया, भाई। भाई वो दयूस है जिनकी बहन अल्लाह लावारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, और भाई अपनी बहन के सामने डीजो पे नाच रहा हो, कूले मटका रहा हो, गाने गा रहा हो, बाल कटा रहा हो, घुटने पे फटी हुई पैंट पहन रहा हो, गैर लड़कियों से बातें कर रहा हो, और बहन को बेशरम बेहया बना रहा हो, उसकी बहन आवारा घूम रही हो, और वो भाई कोई कंट्रोल ना करता, तो वो भाई दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अगर मेरी बात हो तो पलटा दो, ये तो नबी की बात है, पलटाओगे तो खुद पलट जाओगे। वो जन्नत में नहीं जा सकता। तुमने एक बात और सुनी होगी, ये सुनी होगी, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। सुना होगा ना तुमने? सबसे पहला मदरसा क्या बोलो? नबी फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। कहां तक बोलो? तो सबसे पहला मदरसा माँ की
और मदरसा क्या होता है? जहां से अच्छी बातें सीखी जाती हैं, और अगर बुरा मदरसा हो तो सीखेगा वो भी। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मां पर आती है, मां पर। अल्लाह अगर मां शुरू से ही करे तो कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह ताला जैसे बच्चे की उम्मीद दे, सूरह मरियम पढ़ना शुरू कर दे, सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दे, और पढ़ पढ़ के पानी पीती रहे। अल्लाह बच्चे की उम्मीद दे दिया है, सामने कुरान पाक रखा है और पढ़ रही है, इस पे भी रहमत की बारिश हो रही है। जब बच्चा पैदा हो जाए 40 दिन के बाद जब नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तो छोटा सा बच्चा गोद में सामने कुरान रखा हुआ, कुरान भी बच्चा देख रहा है, माँ के चेहरे को भी देख रहा, बच्चा सुन भी रहा है, और रहमत की बारिश हो रही है। वो बच्चा रहमत के बादल के नीचे है, शैतानियत से दूर है। और जब अगर बच्चा दूध पिए तो माँ पूरा जिस्म अपना ढक के बच्चे को चादर उड़ा करके दुरूद पढ़ती जाए और दूध पिलाती जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। पीर की माँ की जरा सुनो, पेट में बड़े पीर है, बड़े पीर की माँ अगर बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है तो कुरान पढ़ रही है, खाना बना रही है तो कुरान पढ़ रही है। 18 सिपारे सुबह से शाम तक वो पढ़ लेती हैं। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा पैदा होता है तो 18 या 15 पारों का हाफिज कुरान होता है। क्या बात है, बेशक। और आज अल्लाह ने उम्मीद दे दी, मोबाइल पे पट्ट पड़ गई। अब मोबाइल में देख रही है सीरियल, लेटी है आराम से। डॉक्टर ने कह दिया टांग भी मत हिलाइए, क्योंकि ऑपरेशन तो इसे ही करना। बेटा बच्चों बात मत करो। अब ये लेटी है लेकिन मोबाइल देख रही है, मोबाइल। वही मोबाइल देखते देखते वही जहनों में ख्याल रखते रखते सो गई। तो रात को कभी भूत देख रही है तो कभी जिन्नात देख रही है, कभी छत पे से गिर रही है तो कभी नदी में कूद रही है। अब सुबह को शौहर से कह रही है मेरी तबीयत खराब नहीं रहती, मैं बड़े बड़े बुरे बड़े बड़े गलत ख्वाब देख रही हूं। अरे ख्वाब तो छोड़, तू आंखें खोल के कौन सी अच्छी चीज देख रही है? ख्वाब की बात तो बाद में कर, आंखें खोल के तो कम से कम अच्छी चीज देख ले। कुरान तू नहीं देखती, हदीस तू नहीं देखती, दुरूद शरीफ तू नहीं पढ़ती, कलमा तू नहीं पढ़ती। सुबह को उठे फजर के लिए वुजू बनाए, 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले और 3 मरतबा चारों कुल पढ़ ले, हाथों पे फूंक के यहां से लेके यहां तक ऐसे करके लगा दे, तो खुदा की कसम सारी बीमारी और आफतें दूर होती हुई नजर आए। रोजाना इतना तो, मगर पड़ी है तकिए पे और मोबाइल चल लिया सा, मोबाइल लंगड़ी कहीं की। अब मोबाइल चला रही, मोबाइल। अब शौहर है बेचारा, कमाए या उसके लिए तावीज लाए, उसे जो रोजाना भूत सता रहे हैं, उल्टी सीधी सो जाएगी मोबाइल देखते देखते। कभी भूत ने दबा लिया, कभी जिन्न, कोई कुछ नहीं दबा रहा है, क्योंकि भूत खुद तुझसे डरता होगा। आधी भूत तो तू बनी पड़ी है। तोबा 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 तोबा। बच्चा है, मोबाइल है छोटा सा। अब तो औरतों ने आसान सीख लिया, पहले
दादी खिलाती थी, अब्बा खिलाते थे, अम्मा खिलाते थे, बच्चों को लोरियां देते थे, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के और कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के छुपा रहे हैं बच्चों को। अब तो बड़ा आसान तरीका, मोबाइल खोला और तकिए पर रखा, 2-1 बच्चों को लगाया, चल जा। वो बच्चा भूल गया बेचारा, ये घूम रही है मोहल्ले में। अगर बस्ती का महका तो आराम से टहलिए, बच्चे सेट हो गए। तो अब वो छोटे बच्चे की आंखें भी बेकार, सीने की धड़कनें भी बेकार, उसके कानों की समात भी बेकार, सारी चीजों पे असर पड़ रहा। ये मां आज की दोस्त नहीं है, दुश्मन हो गई है। लेकिन चलो प्यारे, बात मैं कुछ और बोलना चाहता था, मगर यहां पर इन बच्चों को जो सूरत पढ़ाई तो मैं इधर बोल पड़ा। बेशक बेशक। आज क्या है? आला हजरत के उर्स की पहली रात है। आला हजरत के उर्स की क्या बोलो? आला हजरत की अगर जिंदगी को ना सर से लेके पांव तक देखो, उनके खाने का ढंग, पीने का ढंग, चलने का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, सब शरीयत मुस्तफा पर था। क्या था बोलो? सब शरीयत मुस्तफा पर था। अगर एक शेर ही ले लो ना, एक शेर आला हजरत ने लिखा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनताई नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक। कुरान पाक की आयत का तर्जमा या हदीस शरीफ का तर्जमा या इस्लाम के वाक़ये की तरफ निशानदेही करता हुआ जो शेर होता है, वो शेर आला हजरत ही का होता है। क्या बात है, वाह। आला हजरत बोले, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हदीस शरीफ है, अगर आका से कोई मांगता था तो वो पलट में लफ्ज़ नहीं सुनता था। ये नहीं सुनता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब जरा सुनो, तबरानी की हदीस याद आने लगी। एक औरत ही की बात है, वो औरत अंसारी, वो औरत अंसारी खानदान से थी। अल्लाह अल्लाह उसने सोचा, मैं नबी की बारगाह में तोहफा पेश करूं। क्या करूं बोलो? नबी की बारगाह में कोई ना कोई तोहफा पेश करूं। उसने सोचा क्या करूं, तो जो जिस मिजाज का होता है ना, उसको वही याद आता। कपड़े बुनती थी, पहले कपड़े हाथ से बुने जाते थे, और फिर अंसारी वो क्या करती थी, उसने जो रुई काती ना, काट करके रुई पहले गुस्ल करती थी, फिर खुशबू लगाती थी, बेशक। फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़ती थी, और पढ़ने के बाद जब बुनने बैठती थी तो हर हर तागे पर मेरे नबी का नाम लिया करती थी। दुरूद पढ़ती हुई वो कपड़ा बुना करती थी। अल्लाह अल्लाह, कपड़ा पूरा बुन गया, एक चादर बना ली। और हदीस शरीफ में आता है, उस चादर के चारों तरफ हाशिया लगा हुआ था। जैसे डिजाइन होता ना, ऐसा हाशिया लगा हुआ था। उस औरत ने चादर की तह बनाई, और तह बनाने के बाद आका की बारगाह में चली गई। कहां चली गई बोलो? आका की बारगाह में जब पहुंची, आका की बारगाह में पहुंच करके उसने उस चादर को पेश कर दिया। कहने लगी, आका मैं तोहफा लाई हूं, बड़ी खुशकिस्मत हूं, अगर आप इसको कबूल फरमा ले तो। मेरे नबी देख रहे हैं क्या चीज है। कहने लगी, आका मैंने बड़ी मोहब्बत से इस चादर को बुना है, मैं आपकी बारगाह में आई हूं, कभी आपकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता, आका इसको कबूल फरमा ले।
میرے نبی نے قبول کر لیا. اس نے کہا آقا ایک فریاد اور ہے. جی ایک فریاد اور ہے. کہا وہ کیا؟ آقا اس کو نا زیب تن فرما لینا. بے شک. آپ کے لفظوں میں اس کو پہن لینا, اس کو استعمال کر لینا, استعمال. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد میرے نبی نے اس کو استعمال کیا, لیکن استعمال اس کا صافہ نہیں بنایا, اس کا جبہ شریف نہیں بنایا, اس کے اوپر کی اوڑھنے والی چادر نہیں بنائی, بلکہ میرے نبی نے اس کو تہبند کی جگہ لنگی کی جگہ استعمال کیا. کہاں پر استعمال کیا بولو؟ لنگی کی جگہ وہ چادر کو استعمال کیا. وہ عورت بڑی خوشی اور چلی گئی. آقا کی بارگاہ میں میری یہ چادر قبول ہو گئی. اللہ اللہ, میرے نبی نے اس چادر کو باندھا اور باندھنے کے بعد باہر کو نکل گئے. جیسے ہی باہر کو نکلے بڑی خوبصورت تھی. صحابہ میں بات پھیل گئی کہ فلاں عورت نے یہ چادر دی اور ایسے ایسے چادر بنی. ہر ہر داغے پر نبی کا نام لیا گیا تھا. میرے نبی نے اس کو پہنا اور پہن کے باہر گئے. ایک گاؤں کا دیہات کا رہنے والا ایک صحابی آ گئے, تشریف لے آئے. آقا کی چادر پہ نظر دیکھنے لگے, کہنے لگے آقا لنگی بڑی پیاری ہے. آقا نبی بولے پھر ارادہ کیا ہے؟ آقا یہ چادر مجھے مل جاتی نا تو میری قسمت کی معراج ہو جاتی. سبحان اللہ بولو. آقا یہ چادر مجھے چاہیے. تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا بٹ ابھی تو میں نے پہنی ہے, تجھے یہ چادر نہیں ملے گی. لفظ نہیں فرمایا کہ تجھے چادر نہیں ملے گی. نبی نے کہا ٹھیک ہے, تو نے یہ چادر مانگی ہے, چل میں تجھے یہ چادر دیے دیتا ہوں. آ میرے پیچھے پیچھے آ جا. اب میرے نبی آگے آگے ہیں, وہ غلام پیچھے پیچھے ہے. میرے نبی حجر شریف میں پہنچتے ہیں, دوسری چادر باندھ لی, اس چادر کو کھولا اور اس کی تہ بنا کر کے اس دیہات کے رہنے والے صحابی کو دے دی. اس غلام کو وہ چادر دے دی اور دینے کے بعد کہا لو لے لو. اللہ الصمد. اس صحابی نے کیا کیا؟ اس چادر کو لینے کے بعد اس کو چوما اور سر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد جھومتا ہوا چل دیتا ہے. وہ چادر جھومتا ہوا سینے سے لگا کے چلتا چلا جا رہا ہے. جیسے ہی باہر نکلا دو چار صحابی آ گئے. اس کے ہاتھ میں انہوں نے وہ چادر دیکھی, میرے نبی والی چادر ہے, آقا والی چادر ہے. ان صحابی نے اس کو پکڑ لیا, کہا یہ چادر کہاں سے لا رہے ہو؟ یہ تو وہی چادر ہے جو اس عورت نے نبی کو دی تھی. یہ تو وہی چادر ہے جو میرے نبی کا ہاتھ, میرے نبی کا نام لے کر کے اس چادر کو بنا گیا تھا. کہا ہاں وہی چادر ہے. کہا تم کیوں لے کر کے آئے ہو؟ کہا میں نے نبی سے مانگا ہے, میں نے نبی سے طلب کیا ہے, میں نے نبی سے مانگی ہے یہ چادر, تو میرے نبی نے یہ چادر مجھے عطا کی ہے. وہ صحابی بولے ارے تمہیں پتہ نہیں تھا نبی کو یہ چادر کتنی پسند ہے. اگر میرے نبی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو منع نہیں فرماتے ہیں, وہ دے دیا کرتے ہیں. تم نے نبی سے یہ چادر کیوں مانگی ہے؟ کیا تمہاری اتنی ہمت ہے جو نبی کا پہنا ہوا کپڑا تم پہنو؟ تمہارے اندر اتنی جرأت ہے کہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا تم پہنو؟ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ نبی کا استعمال کردہ تم پہنو؟ ارے تمہارے اندر اتنی جسارت ہے کہ آمنہ کے لال کا استعمال کردہ کپڑا تم استعمال کرو. بولو تم آقا ہو یا وہ آقا ہے؟ کہا وہی آقا ہے. تو تم نبی کا کپڑا کیسے پہن سکتے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگا او بھائی ذرا میرے ہاتھ چھوڑو, میں تمہیں جواب دیے دیتا ہوں. ذرا میرا ہاتھ چھوڑو, میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میں نے نبی سے چادر کیوں مانگی ہے. کہا ہاں بتاؤ. انہوں نے ہاتھ چھوڑا. مالی کھیڑا کے غیور مسلمانوں سنو, وہ صحابی کی محبت کا ذرا مقام دیکھو. وہ صحابی
सहाबी कहने लगे, वो गांव के रहने वाले थे, वो देहात के रहने वाले थे, उन्होंने कहा जरा मेरा हाथ छोड़ो। उन्होंने हाथ को छोड़ा। अरे तुम क्या समझते हो कि मैं नबी का पहना हुआ कपड़ा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं पहन लूं? नबी का इस्तेमाल करता, क्या मैं इस्तेमाल कर लूं? क्या नबी का पहना हुआ कपड़ा मैं नहीं पहन सकता? फिर तुमने क्यों मांगी है? वो जवाब क्या देते हैं? अरे मैंने नबी की चादर इसलिए मांगी है, जब कल को मैं मरूंगा तो नबी की चादर का कफन होगा, मरूंगा मैं और कफन होगा नबी का। फरिश्ते मुझसे सवाल करेंगे मन रब्बू का, जवाब दे दूंगा रब्बी अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे मादीनों का, जवाब दे दूंगा दीनी अल इस्लाम। फरिश्ते कहेंगे आका के बारे में क्या कहा करता था, जवाब दे दूंगा। क्या कफन नहीं देखते हो? कफन नहीं देखते हो? कफन नहीं देखते हो? वही तो मेरे आका है, वही तो मेरे मावा है, वही तो मेरे मलजा है। तो बताना ये है, अगर नबी से कोई मांगे, ओ लोगो तुम समझ रहे हो कि मैंने अपने पहनने के लिए मांगी है? नहीं, मैंने अपनी बख्शिश के लिए मांगी है, मैंने अपनी नजात के लिए मांगी है, मैंने अपनी शफात के लिए मांगी है। बरेली का इमाम बोला, अल्लामतुज़्ज़मान बोला, वाह क्या जूदो करम है, शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अगर चाहो तो थोड़ा सा इको कम कर सकते हो, ताकि बात पूरी समझ में आ जाए, ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। अरे यार, इसीलिए आला हजरत थोड़ी कहते हैं। आला हजरत को अगर संभल के जान लो ना, संभल के अगर पढ़ लो, संभल के अगर सुन लो, तो सही कह रहा हूं, तुम इतने गिरवीदा हो जाओगे, इतने आशिक हो जाओगे, इतने आशिक हो जाओगे, जहां निकल जाओगे तो यही कहोगे, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत। सुनो, कुरान की एक आयत है, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिक, 15वें पारे की। इस आयत की शान नुजूल में एक वाकया लिखा, बता दूं। एक औरत, वो भी मोमिना नहीं थी। कौन थी? मुसलमान मोमिना नहीं थी, बल्कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाली थी। अल्लाह आई एक मोमिना औरत के पास, जिसका बड़ा नाम था, आका पर दुरूद पढ़ा करती थी। आकर के कहने लगी, तुम सारे नबियों से अफजल व आला अपने नबी को मानती हो? तो वो मोमिन औरत कहने लगी, हक है। कहा हक है? कहा कैसे? वो मोमिना औरत बोली, हक है। बोली कैसे हक है? तुम्हारे नबी से अफजल तो हमारे नबी हैं। कहा एक आध चीज तो बताओ, कैसे अफजल है? मैं तो सारे नबियों को मानती हूं, अपनी अपनी जगह पर आका है, मगर उन तमाम में अफजल हमारे आका हैं। सारे नबी अफजल, सारे रसूल अफजल, जिनका कोई जवाब नहीं, मगर उन सब में अफजल हमारे आका। मगर वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली कहने लगी कि नहीं। कहा क्यों? कहा हमारे नबी तुम्हारे नबी से अफजल। कहा कैसे? कहा इसलिए अगर कोई मांगने वाला मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था, तो मूसा अलैहिस्सलाम से जब सवाल करता था तो अपना सारा माल इकट्ठा करते थे, उसके दो हिस्से करते थे, एक हिस्सा मांगने वाले को दे दिया करते थे और एक हिस्सा अपनी जरूरत के लिए रोक लिया करते थे। इतने बड़े सखी एक हिस्सा अपनी जरूरत के लिए रोक लिया करते थे। तो ये मोमिना मुस्कुरा करके कहने लगी, बस
अरे हमारे आका तो वो थे जो अपनी जरूरत के लिए भी नहीं रोकते थे, बल्कि अपनी जरूरत की चीज दे दिया करते थे। वो कहने लगी मैं कैसे मान लूं, तो ये मोमिना कहने लगी ओ मेरी बहनों सुनो, तुम भी ऐसे ही जवाब दिया करो। ये कहने लगी बोल मैं तुझे बता दूं या फिर दिखा दूं। बोली दिखा दो। तो बताया, पूछा कहां से आ रही हो, कहा मैं तुम्हारे नबी के पास से आ रही हूं। कहा हमारे नबी के पास इस वक्त एक ही जुब्बा शरीफ है, एक ही जो कुर्ता पहने हैं वही है, इसके अलावा कोई और कुर्ता नहीं है। कहा हाँ हाँ नहीं है। कहा लो अभी दिखाई देती हूं। उसने अपनी छोटी सी बच्ची को बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटी जरा मेरे पास आ जा, और आकर के जा आका की बारगाह में चली जा, दुरूद पढ़ती हुई चली जा। वो छोटी सी बच्ची तुम्हारी हमारी तरह बच्ची नहीं थी, जिसके दद्दत चिमटियां लगी हुई होती है, जिसकी चुटियां टेढ़ी बेड़ी होती है, जिसके बाल उल्टे सीधे होते हैं, जिसके कपड़े भी खराब होते हैं, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा होता है, ओढ़ने और चलने का ढंग फिल्मों जैसा होता है। वो मोमिना बहन की बेटी थी। अगर चल रही है तो ढंग फातिमा का है, अगर खा रही है तो ढंग फातिमा का है, अगर पी रही है तो ढंग फातिमा का है, अगर ओढ़ रही है तो ढंग फातिमा का है। अल्लाह अल्लाह चलती चली जा रही है, खरामा खरामा जा रही है, नबी पे दुरूद पढ़ती हुई जा रही है। कहा बेटी सुन, जा तो रही हो मगर जाकर के कहना आका जो आप अपना जुब्बा पहने हैं ये जुब्बा मुझे दे दीजिए, मेरी अम्मी ने मंगाया है, इतना कहना था, और जाकर के मेरा सलाम कह देना। वो लड़की जा रही है। अरे छोटी सी बच्ची का एतबार क्या होता है, लेकिन चलती चली जा रही है। मेरे नबी नमाज के लिए वुजू फरमा रहे थे, नबी नमाज के लिए वुजू कर रहे थे। इतने में वो लड़की पहुंच जाती है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलातो सलाम पढ़ रही है नबी पर। मेरे नबी ने जवाब दिया है, कहा आका ये जो जुब्बा पहने हैं ये जुब्बा मेरी अम्मी मंगा रही है। जब इतना कहा, अरे तुम देखा करते हो अपने आप को, मगर मेरे नबी उस बच्ची को नहीं देख रहे हैं जो उन दो औरतों में मुकाबला हो रहा है। आमना के लाल उसे देख रहे हैं। मेरे नबी ने जुब्बा उतारा और उतार करके तय बना दिया, तय बना करके उस बच्ची को दे दिया। कहा जाओ अपनी अम्मी को दे देना। वो लड़की सीने से लगाती है और लगा करके चली आती है, झूमती हुई चली आ रही है। अल्लाह अल्लाह, जब उस औरत के पास पहुंचती है, जब उसने देखा अरे ये तो वही नबी का जुब्बा है, उसने आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके बोसा दिया और बोसा दे करके नबी का कलमा पढ़ लिया। और जब नबी का कलमा पढ़ा तो फिर उससे पूछा, अरे अभी तो तुम मान नहीं रही थी लेकिन अब तू क्यों मान जाती है? वो औरत कहने लगी सुनो, मुझे यकीन हो गया जो नबी अपनी जरूरत का अपनी उम्मत को कुर्ता दे सकता है, वो नबी जन्नत का टिकट भी दे सकता है, वो नबी शफाअत भी करा सकता है, वो नबी हश्र के मैदान में काम भी आ सकता है। बरेली के इमाम बोले सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। अल्लाह तवज्जो, बरेली के इमाम बोले ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब वो लड़की जब ईमान ले आई, उधर नमाज को थोड़ा लेट हो गए। सहाबा ने देखा आका वुजू बना रहे थे लेकिन आका आए नहीं है, क्या बात है, आका तशरीफ नहीं लाए। सहाबा घर पहुंच जाते हैं तो देखा नबी के पास कुर्ता नहीं है। आका क्या हुआ? नबी ने पूरी बात जब बताई, एक जरूरत के लिए मैंने कुर्ता दे दिया तो अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, वाला तजाल यदा का मगलूलतन इला उनुकिक, कुरान की आयत नाजिल हो जाती है। अब बरेली का इमाम बोला वाह क्या जूदो करम है, शे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है बरेली के इमाम, ये है बरेली के इमाम। अल्लाह, एक बात और याद आ रही, टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ, मुझे भी जाना भी बरेली शरीफ, टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ। बोलो बताइए क्या टाइम हुआ? 1:15, कम से कम 1:30 तो बजाऊंगा ही, और आगे बढ़ जाऊं वो आपकी मोहब्बत।
घबराओ मत, आगे बढ़ जाओ तो वो आपकी, मगर 1.5 तो इंशाअल्लाह 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 बजेगा। मेरे नबी की बारगाह में 2 सहाबी गए। कौन गए? मुफ्ती साहब क़िबला। 2 सहाबी गए। तो उस वक्त ये लाइट वाइट तो थी नहीं, चराग जलते थे, चराग, डब्बी जलती थी, ये सारी चीजें रोशनी के लिए इंतजाम होता था। जब जमाई आना चाहिए ना तो ये बायां हाथ मुंह पे रखना चाहिए ऐसा, ठीक है? क्या करोगे? हाँ, जमाई आती है तो ऐसे ही मुंह खोल के नहीं, बल्कि क्या रखना चाहिए? बायां हाथ की ये पुष्ट ऐसे मुंह पे रखना चाहिए, ठीक है? और ये दिल में ख्याल करना चाहिए, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जमाई नहीं आती थी, ठीक है? एक मसला, हमने एक चचा को देखा, उन्होंने हाथ नहीं रखा तो मैंने मसला बता दिया, ठीक है? और जब छींक आए तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा अगर सुने तो वो क्या कहे? यरहमुकुमुल्लाह। तीसरा अगर सुने तो वो क्या कहे? वयहदिकुमुल्लाह, ठीक है? और सुने तो फिर कहते जज़ाकुमुल्लाह। अब सुनो, 2 सहाबी गए, छोटी छोटी बातें याद रखा करो। पानी पियो तो कितनी सांसों में बोलो? अरे वाह माशाअल्लाह। और जब बोतल लगा के यूं गटर गटर करते, गटर गटर ये नलखड़ा चलता रहता तो सांस का पता ही नहीं रहता। 3 सांसों में, पहले हल्की सांस लो और पानी देख के पिया करो, देख के। यार मैंने बताया नहीं, शरीयत मुस्तफा। क्यों? इसलिए देख के पिया करो, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई तकलीफ दे चीज तो नहीं है जो घाटी में चली जाए और तकलीफ हो। इस्लाम वो मजहब है कि मुसलमान को और इंसान को तकलीफ से बचाता है। पानी देख करके पिया करो। सुबह उठा करो, माँ बाप का दीदार किया करो, मुस्कुरा करके सलातो सलाम किया करो। बाहर से कहीं आया करो, घर में कोई नहीं है, बीबी भी है ना, बीबी, तो उसको भी सलाम किया करो, ठीक है? करते हो बीबी को सलाम? बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। और अगर बीबी को कर भी दिया तो इतना जोर से ठिट्टा मार के हंसेगी, इतना जोर से ठिट्टा मार के हंसेगी कि मत पूछो। बीबी को सलाम किया करो। और अगर घर में कोई भी नहीं है ना, कोई भी, तब भी सलाम किया करो, इसलिए फरिश्ते होते। समझ में आ रही है? तब भी सलाम किया करो। दूसरे के घर पे जाया करो तो खांस के जाया करो, बेदार करके जाया करो। ये नहीं कि ओ कलुआ, ओ भूरा, और चूल्हे पे जाके खड़े हो गए। बेचारे की बहन बेटी पता नहीं किस हाल में है। अगर वो हो सकता बगैर दुपट्टे के हो, तुम्हें जब पता चले दरवाजे पे कौन हो तो वो पर्दे में आ जाए। समझ में आ रही है? क्या पता मियाँ बीबी बैठे हुए, कोई तीसरा नहीं है, किस हाल में बातें कर रहे हैं जो उनके लिए जायज़ है, तो तुम्हें देख के समझ जाएंगे। या हो सकता बाहर बैठे हुए, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, कुछ इस हाल में खा रही हो वो, तो तुम्हें देख के आड़ में हो जाएगी। इसलिए पहले दरवाजे पे खांसा करो। तरीका यह है कि सलाम किया करो। तरीका क्या है? सलाम किया, ताकि अंदर की पर्दे वाली खातून जो हैं वो पर्दे में हो जाएं, ठीक है? ये छोटी छोटी चीज़ों का। औरतें, मसला ये बोलते हैं कि अगर कोई औरत अपने शौहर का नाम ले दे तो निकाह टूट जाता है। कहीं निकाह कोई इतना कमजोर थोड़ी है तो नाम लेने से टूट जाता। नाम लेने से तो जुड़ता निकाह, समझे? अगर कोई औरत नाम ले दे अपने शौहर का तो निकाह नहीं टूटता है। और जब खाना खाया करो, अगर घर में दोनों मियाँ बीबी हुआ करो तो साथ में बैठ के खाया करो, प्यार से मोहब्बत से खाया करो। ये इस्लाम तरीका बताता। अगर हो सके तो एक लुकमा तोड़ के बीबी के मुंह में रख दिया करो और बीबी शौहर के, ताकि मोहब्बतें बढ़ें। ऐसे नहीं है कि हर खाने में घुर घुर गुर 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 गुर, हर खाने में लड़ाई हो रही है, हर खाने में लड़ाई हो रही है। समझे? सुबह को नाश्ते में लड़ाई, दोपहर को खाने में लड़ाई, शाम को लड़ाई। एक मास्टर साहब थे, वो बोले सैयद साहब ऐसा तावीज़ दे दो, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने क्या बात? बोले मेरी बीबी लड़ती बहुत है। सुबह खाना खाऊं तब लड़ रही है, दोपहर खाना खाऊं लड़ रही। मैंने कहा तो तेरी बीबी है झगड़ेपन की मशीन है। तो बोले छोटी छोटी बात पे लड़ जाती है, कोई भी बात हो तो घुर्र घुर्र करती रहे। बस बस मेरी बहन है ही ऐसी।
अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। जरा जरा बात पे लड़ाई। तो मैंने कहा एक बात बताऊं, मैं तुम्हें तावीज़ नहीं दे रहा हूं, नबी की एक दो बातें तुम्हें बताए देता हूं, वो करो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। बोले बता दो हुजूर। मैंने कहा जब खाना खाने बैठो तो पहला लुकमा तोड़ के ना दोनों हाथों जैसे फूल पेश करते ऐसे ही बीबी को लुकमा दे दियो, मुंह में दे दियो। बोले और अगर लड़ाई हो गई तो मैंने कहा वैसे भी तो हो ही रही है, एक दिन और सही। तो बोले अच्छा ठीक है। बैठ गए बेचारे मास्टर साहब थे, दिल तो धड़क ही रहा था क्योंकि डरा लिया था अच्छा खासा बीबी ने। इज्जत की खातिर बेचारा क्या ना करे, उसने जो था लुकमा तोड़ा, डरते 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 मुंह में दिया तो ऐसे घुन्ना कर जबरदस्ती मुंह में दबा लिया। उसने दबा तो लिया और टेढ़ी नजरों से देखती जा रही है, खिसिया गए और मुंह में चलाती जा रही है, चलाती जा रही। उसने एक और दे दिया, खैर कोई बात नहीं, खा लिया। दूसरे दिन को फिर दिया तो थोड़ा गुस्सा कम हुआ, वो भी खा लिया। तीसरे दिन को जब दिया ना तो उसने हाथ पकड़ लिया कि मुझे ही खिलाते रहोगे क्या, तुम नहीं खाओगे क्या। उसने अपने हाथ से लुकमा तोड़ के उसे भी खिलाना शुरू कर दिया। वो दिन है आज का दिन है, लड़ाई नहीं हुई। अब मिले 10-15 दिन के बाद, मैंने कहा मास्टर साहब तावीज़ का क्या हाल है, लोगे है? नहीं। बोले हुजूर बहुत बढ़िया हूँ। बोले क्यों? बोले पहले दिन तो मैं डर ही गया था, लुकमा क्या खा रही थी, ऐसा लग रहा है कि मुझे पीस जाएगी। दूसरे दिन थोड़ी ठंडी हुई, तीसरे दिन तो उन्होंने हाथ पकड़ा मुझे ही खिला दिया। अब तो अगर खाने का टाइम होता, कहाँ हो, खाना नहीं खाओगे कि मैं 1 घंटे में आऊंगा, तू खा ले। बोले मैं भी नहीं खाऊंगी, साथ में ही खाऊंगी। तो ये अगर जिंदगी तुम ले आओ तो बहारें आ जाएंगी तुम्हारे घर, बहारें आ जाए। अरे अल्लाह ने अगर बीबी दी है या बीबियों को शौहर दिया है तो खुश रहो। आधी रोटी खाओ, नमक से खाओ, चटनी से खाओ, सूखी खाओ, रूखी खाओ, मगर खुश रहो यार। तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो अच्छा चेहरा करके जबान से मीठी मीठी बातें तो बोल सकते हो, और बाज तो थूथड़ा उसका बिगड़ा ही रहता है। जैसे ही बेचारा ये थका मांदा आया, काम करके आया, एक तो वैसे ही गुस्से में था, काम नहीं चल लिया था। मेरी बहन ने देखा, निकाला सैंडल और चप्पल और बच्चों पे धड़ा पड़, कभी छोटे को कभी बड़े को इतना मारा हो गिरा जाएगा। बोला क्यों मार रही है इसको? तो बोली चुप के रही हो, तुम्हारा ही कारनामा ये। अब वो तुम्हारी अम्मा बुढ़िया बैठी ना, उनने बिगाड़ा, लड़ाई निकल गई। चलो क्या करोगे? मोहब्बत से रहना मियाँ बीबी, ठीक है। किसी के घर में जाओ तो क्या करोगे? हाँ, बीबियों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी, समझ रहे? बीबियों को, अब सुन लो आज से, बीबियों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम चले गए धान लगाने और ये चले गई मोहल्ले में आग लगाने, काम बराबर चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ो। मेरे नबी की बारगाह में 2 सहाबी, कितने सहाबी? 2 पहुंच गए। आका से मीठी मीठी बातें कर रहे थे, बड़ी प्यारी प्यारी। मेरे आका समझा रहे, बातें कर रहे, मसाइल बता रहे, उनका दिल बहल रहा था, आका का दीदार कर रहे थे। रात काली थी, आधी रात हो गई बात करते हुए, आधी रात, अब काली रात है और दोनों को घर भी जाना था। आका घर जाना है, कोई रोशनी का इंतजाम है नहीं, क्या करे? हदीस शरीफ का मफहूम बता रहा हूं। मेरे नबी भी खड़े हैं, वो सहाबी भी। आका कैसे जाए, बड़ा अंधेरा। मेरे नबी बोले तुम्हारे पास कोई चीज है? तो पहले लोग लठ रखते थे हाथ में, डंडा रखते थे, छतरी रखते थे, टार्च रखते थे। इन बुजुर्गों से पूछो, बोलो है कि नहीं? कुत्ता बिल्ली अपनी हिफाजत के, इनके हाथ पांवों में ताकत होती थी। एक एक आदमी लठ से कई कई आदमियों पे कब्जा नहीं देता था। पूछो, अगर वो बैल या भैंसा गाड़ी, उसका पहिया अगर कहीं बैठ गया, नहीं खिंच रहा, इसने लगाया रुमाल यहाँ कांधे पे और लगाया बल्ली पर, लगाया धक्का, बैल भी पार और गाड़ी भी पार। क्यों? गुड़ खाते थे, चने की रोटी। इनकी नीयत बड़ी अच्छी थी, दिल बड़ा अच्छा था, साफ थे, बिल्कुल साफ। कोई हसद नहीं, कोई कपट नहीं, कोई चाल फरेबी नहीं। भाई भाई का होता था, दोस्त दोस्त का होता था। इनकी माएँ इन्हें खोट खोट के बादाम, जीरा, घर का दूध, घर का मठा, घर का मक्खन खाते थे, मक्खन। पूछो इन्होंने
किलो किलो 2.5 किलो घी की डेलियां मुंह में रख के खा गए, तुम्हें सूंघने नहीं मिल लिया ये मगर फिर भी किसी की बहन बेटी को नहीं तकते थे ये, किसी भी बहन बेटी को ये तकते नहीं थे, इनके कारनामे गलत नहीं थे, बैठकों पे पड़े हैं, रातों रात बैठकों पे रहते थे, अगर गैर मुस्लिम लड़की भी है ना तो उसकी भी इज्जत करते थे। और आज पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन सुनो, मेरे नबी की बारगाह में आका अंधेरा है, मेरे नबी बोले क्या है तुम्हारे पास? एक सहाबी, दोनों के पास लाठियां थी, बोले आका लाठी है। तवज्जो, क्या है बोलो? आका लाठी है। मेरे नबी ने फरमाया करीब लाओ। अब वो लाठी करीब लाई गई, आमना के लाल ने उस लाठी पर हाथ फेर दिया। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? मेरे नबी ने उस लाठी पे हाथ फेर दिया और जैसे ही लाठी पर हाथ फेरा वो ट्यूबलाइट की तरह रोशन हो गई, वो टार्च बन गई, रोशनी का इंतजाम। सहाबा की अगर जब भी अटकती थी वो मेरी नबी की चौखट पे पहुंचते थे और जो कुछ मिलता था नबी की चौखट से मिलता था। तभी तो बरेली के इमाम बोले ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। अब चमक उठी, दोनों सहाबी उसी लाठी की रोशनी में जा रहे हैं। ये है आमना के लाल, दोनों सहाबी उसी लाठी की रोशनी में चल रहे हैं। अब ऐसा मोड़ आया, एक को इधर जाना, एक को इधर। अब क्या करें? अगर इधर वाले ले जाए तो इधर अंधेरे में, और इधर वाले ले जाए तो इधर वाले अंधेरे में। आज का मुसलमान होता तो लड़ गया होता, मगर ये बोले भाई तुम ले जाओ, वो बोले तुम ले जाओ। और आज सगे भाई जिन्होंने एक माँ का दूध पिया है, इतनी जगह के पीछे खून के प्यासे बन जाते हैं, दीवार टेढ़ी सीधी करने के चक्कर में, एक दूसरे को मारने के चक्कर में रहते हैं। 2-4 अभी 8 दिन की रिपोर्ट है, 2-4 बीघे जमीन के चक्कर में बाप का गला घोट दिया, छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। अरे ये दौलत कहां ले जाओगे? अपने अंदर मोहब्बत पैदा करो, अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, बड़ों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की कदर करो, इस्लाम को अपने अंदर लाओ। अब सुनो, वो थे, वो बोले भाई तुम ले जाओ, वो बोले तुम ले जाओ। कहा नहीं, हमारे नबी ने इसको टच कर दिया है, करंट पैदा हो गया है। उनका ईमान देखो, उनका जज्बा देखो। वो बोले भाई तुम अपनी लाठी को हमारी लाठी से टच कर दो। उन्होंने दोनों लाठी जब टच की है तो दोनों लाठी रोशन हो जाती है। बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुल्हिदुन नज़ारे सैयद अदनान बोले, अश-शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, क्या बोले? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अरे यार, आला हजरत की जात, खाली ये तो अशारी पर बोल रहा हूं। मैंने कहा ना, कुरान की या तो किसी आयत का तर्जमा या हदीस का तर्जमा या इस्लाम के वाक़ये की तरफ निशानदेही करता हुआ नजर आता, वो है शायरी आला हजरत। एक शेर हजरत बहुत पढ़ा जाता है और हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, बल्कि सारे सैयदों के ऊपर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये तुमने बहुत सुना होगा ना। इस शेर का जवाब उदबा आज तक नहीं लाए शोरा। आला हजरत के दौर से आज तक इसका जवाब अहले बैत अतहार के ताल्लुक से हजरत जो ये लिखा गया, इसका जवाब आज तक नहीं आया। तो लोग जो सीधे साधे हैं, बल्कि
اور تھوڑے سے پڑھے لکھے بھی وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے سید جو ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہیں، نورانی سے مراد لینا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو بہت خوبصورت اور بہت زیادہ چٹے. اگر کوئی سانولے رنگ کا سید ہے تو وہ کیا سید نہیں ہے؟ وہ بھی سید ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت کا شعر میں آج اس کو سمجھاؤں. توجہ ہے علماء کے لیے بھی، مفتی صاحب قبلہ کئی مرتبہ بیان کر چکے، ان کو سنو. میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر مسئلے کی بات آ گئی تو تھوڑا بتانا پڑے گا. عورتیں مہینے میں ایک مرتبہ اس حال میں ہوتی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، بے شک وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی. میرا اشارہ سمجھ گیا؟ اچھا دوسری بات، کیونکہ وہ خون جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو؟ ناپاک ہوتا ہے. اب بات یہ آتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی بہن کو بچے کی امید دے دیتا ہے تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، پھر حیض MC نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب تیسری ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کھاتا پیتا کیا ہے، اس کی غذا کیا ہے. پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی، مفتی صاحب سے پوچھو، وہاں پر بھی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. وہی رزق ماں کے پیٹ میں ڈیوٹی. ارے میرا رب ہے، سنو گے تو مچل جاؤ گے. جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کہاں سے پہنچاتا، کیا ہوتا ہے؟ تو ماں کے رحم سے اس بچے کی یہ ٹنڈی ناف نا، اس میں اپنی قدرت سے ایک پیپ جوڑ دیتا ہے جس کو نال بولتے ہیں. بچہ پیدا ہونے بعد کہتے ہیں نا ڈاکٹر نے نال کاٹ دی، نال ہوتا ہے نا، تو وہ پیپ جوڑ دیتا ہے. میں لفظ پیپ بول رہا ہوں سمجھ لینا، وہ پیپ. تو جو عورت کو مہینے میں گندا خون آتا تھا، اللہ اپنی شان اور قدرت سے وہ بچے کا رزق بنا کر کے ماں کے رحم سے پیٹ میں کو سپلائی کرتا ہے. وہ ہے اس کی خوراک. تو بچوں کی خوراک کیا؟ وہ ماں کا گندا خون. لیکن اب سنو، سید جو ہیں ان کی جڑ، ان کی ماں، ان کی دادی سیدہ فاطمہ. کیا ہے بولو؟ پھر ان کی اولاد، 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 ان کے اب تک ہم تک اوروں تک. سمجھ میں آگئی بات؟ لیکن سیدہ فاطمہ ناپاک ہوتی نہیں تھی، ان کو وہ خون آتا ہی نہیں تھا. سمجھ رہے میری بات؟ چلو بہنوں کو آتا ہے تو وہ ان کے بچوں کے لیے ان کا خون غذا بنا. اور سیدہ فاطمہ کے 6 بچے ہوئے. فاطمہ کے کتنے بچے؟ 3 بیٹے 3 بیٹی. تم نے 2 کا ہی نام سنا ہوگا، حسن حسین کا. تیسرے بیٹے کا نام ہے امام محسن، یہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. 3 بیٹے اور حسن حسین اور محسن. بیٹی زینب، ام کلثوم اور رقیہ. حضور کی بیٹیوں کے بھی یہی نام تھے. حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور سیدہ فاطمہ. فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی بہنوں والے نام رکھے تھے. کہیں کوئی کنفیوز ہو جائے کہ سید صاحب کیا بتا کے چلے گئے. تو اب مجھے بتاؤ، سیدوں کی جڑ ہے فاطمہ کا پیٹ، اور فاطمہ کو وہ 6 بچے، پھر ان کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، قیامت تک ان کے بچے، سارے کے سارے سید. مگر اعلیٰ حضرت کی پہنچ تو دیکھو یار، ایسے ہی اعلیٰ حضرت تھوڑی کہا جاتا. اعلیٰ حضرت کی اڑان تو دیکھو. اب سوال یہ ہوتا ہے، فاطمہ کے پیٹ میں حسن، پھر اس کی خوراک کیا؟ فاطمہ کے پیٹ میں حسین، پھر ان کی خوراک کیا؟ فاطمہ کے پیٹ میں امام محسن، سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ. ان کو تو وہ گندا خون آتا ہی نہیں تھا، تو ان کی غذا کیا ہے؟ اور بچوں کی غذا ماں کا خون بنتا ہے. سیدوں کی غذا
नबी का नूर बनता है। तभी तो बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह तेरी 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 नस्ल पाक में पाक पाक तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये है बरेली के इमाम। बरेली के इमाम की उड़ान तो देखो। ये है बरेली के इमाम। आखिरी बात बता दूं और खत्म। एक मर्तबा आला हजरत लिख रहे थे, बच्चा कितना ही बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितने बड़ा काबिल हो जाए, डॉक्टर हो जाए, पहलवान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ के इतना ही बड़ा लगता है, माँ को छोटा ही लगता है। माँ ने कहा बेटा अहमद रजा, प्यार तो देख, जो माँ की बोली में प्यार होता है दुनिया की किसी बोली में है ही नहीं। क्या कहा बेटा अहमद रजा, उठ के खड़े हो गए, जी माँ, कलम रखा, उसके ऊपर वर्क रख के दबा दिए, जी माँ। पर्दे के पास गए, आला हजरत की माँ ने बोतल दे दी, शीशी दे दी, कहा बेटा तेल खत्म हो गया, दुकान पे से तेल ले आओ। तो यार माँ आई, क्या ले आओ बोलो? तुम्हारी अम्मी तुम्हें पान लेने भेज दे, दुकान पे भेज दे, 70 बहाने बना देता, 70 दोस्तों के साथ मोबाइल चलेगा, वो दुकान बंद है, झूठा कहीं का। माँ का कहना माना करो। सुन रहे बेटा, माँ का कहना। कहा अहमद रजा बेटा तेल ले आओ, तेल का जी माँ। आला हजरत के इतने शागिर्द, इतने मुरीद, ये भी तो कह सकते थे। हाँ, ये कोई रबड़ बड़ थोड़ी है। तवज्जो। अब कहा बेटा अहमद रजा, इतने मुरीद थे, सब कुछ थे, कह दो ले तेल लेगा। नहीं कहा, क्योंकि माँ ने इनसे खुद कहा था, आज ना इतना बड़ा पीर, छोटी सी प्रिया, फिर भी जूते उठाने वाला अलग, और जब तक 10-20 नारे ना लगे इसके कलेजे को ठंडक ही नहीं पड़ती। पांव दबाते दबाते ये गोश्त पुलपुला हो गया। ये छोटा सा ना पीर, छोटी सी प्रिया। आला हजरत को तो देखो यार, कसम से क्या जिंदगी थी आला हजरत की। सब लोग हैं, बड़े बड़े मुफ्ती आते थे आला हजरत से फतवे पूछने और लिखने, लेकिन माँ बोली अहमद रजा तेल ले आओ। का जी माँ। छोड़ा सब कुछ, तेल लेने चले दुकान पे। मुजद्दिद आज़म तेल लेने दुकान पे चले। सब लोग, अरे बड़े मौलवी सवाल, अस्सलाम वालेकुम सरकार, अस्सलाम वालेकुम सरकार। आला हजरत चलते थे, माँ ने तेल मंगाया, माँ ने तेल मंगाया। दुकानदार के यहाँ पहुंच गए, वो खड़ा हो गया, बोले सरकार इधर आ जाओ। बोले ना मैं दुकानदार थोड़ी, तू है, वहीं बैठ, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आला हजरत ने दुआ दे दी। जी सरकार कैसे हैं? हुक्म फरमा दिया होता मैं खुद ही आ जाता। कहा क्यों? मेरी माँ ने मुझसे कहा। आला हजरत ने शीशी दी और कहा ले ये बताओ मेरी शीशी कितने में भर जाएगी। पहले नापने वाली पीक वगैरह होती थी, उससे नाप के बिकता था तेल। उसने नापा, बढ़िया करके नापा, बोले हुजूर 5 आने में भर जाएगी, मगर आप इतने बड़े आलिम हैं, आज तो मेरी किस्मत की मेराज हो गई, मेरी बरकतें होंगी, आपसे 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दूंगा। कितने आने लूंगा बोलो? 3। आज का मौलवी होता तो खुद कहता हाँ मेरी शानी ऐसी है, हाँ बहुत लोग मानते हैं मुझे, पैसे ही कहाँ ले रहे हैं। आला हजरत बोले कितने में? बोले 5 आने में भरेगी वैसे तो, मगर मैं 3 आने लूंगा आपसे। आला हजरत बोले भर दो। शीशी भर दी, और जैसे ही भरी, ये हम लोगों के लिए भी नसीहत का जुमला, आप लोगों के लिए भी, जैसे ही भरी, आला हजरत जो सदरी मिर्जैया पहले चलती थी, उसमें से 5 आने निकाले और दे दिए। उसने 5 आने देखे, और देखने के बाद 2 आने वापस कर दिए। कहा इतने बड़े आलिम मेरी दुकान पे आए,
दो आने वापस कर दिए। आला हजरत का जुमला सुनो, बरेली के इमाम का जुमला सुनो, मुजद्दिद आजम का जुमला सुनो, आशिक सच्चे आशिक रसूल का जुमला सुनो। वो बोले रख ले अहमद रजा का इल्म दो आने में नहीं बिकता है, रख ले आला हजरत का यानी अहमद रजा का इल्म दो आने में बिकने वाला नहीं। आज लोग बेचे फिर रहे हैं इल्म को, बिक रहे हैं, बिक। अल्लाह माफ फरमाए, पहले मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये है आला हजरत। समझ में आ रही है? अपनी माओं का काम किया करो, माँ बाप का कहना, बच्चों माँ बाप का कहना माना करो। बच्चियों तुम भी समझे, लोग आते हैं मेरे हाथ चूमते हैं, हजरत के चूमते हैं, इनके चूमते हैं, दुआएं कराते हैं, कोई पीर साहब आते हैं, तो अच्छी बात है, मगर एक बात बता दूं काम की, इसे गांठ में बांध के ले जाइयो और फिर तकरीर खत्म है। हजरत से वो कह गए बोले थोड़े बढ़वा दियो, तो मैंने वो रबड़ थोड़ी है जो खींच के बढ़ा दूंगा। तवज्जो है ना, खुद तो टहलते फिर रहे इधर आधर और कह रहा तकरीर बढ़वा दियो। हाँ इनसे सुनो, ये बेचारे जो इशा के बाद से बैठे, कब से बैठे, खुद तो टहलते फिर रहे इधर आधर घूमते फिर रहे, बस इतना कहने आए तो वो भी निकल लिए। फिर यहाँ बैठो 2 घंटे तो पता चले। ये इशा के बाद से बैठे बेचारों, किसको इस्तिंजा लग रहा है, किसको क्या जरूरत है, किसके कमर में दर्द है, ऐसे बुजुर्ग बैठे जिन्हें नींद की जरूरत है, वो आए और गोली दे के बोले बढ़वा दियो। देखियो वो सो रहा है पंखे के नीचे, देखियो सो रहा है। अरे उठ जा, अब क्या करे, अब इनके लिए बढ़ाऊं मैं? अब बताओ बेचारा बंदा छोटा सा बांस लगा टेक लगा के सो रहा, समझे? तो ये वाला मैटर अब खत्म करने का टाइम है, घबराओ मत। तवज्जो है ना, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या जज्बा है। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं, मगर इन सोने वालों से तो पूछ लो। तवज्जो, कोई बात नहीं, अब इन्हें नींद आधे घंटे तक नहीं आएगी, इतनी मैंने इनकी नींद उड़ा दी। अब माफ करना, मेरा मतलब दिल दुखाना नहीं था, मेरा मतलब दिल दुखाना। जो बात आती है हक आती है, मुंह पे कह देता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे उन्होंने बुलाया तो मैं उनको नहीं कहूं, या इन्होंने बुलाया इनको नहीं कहूं। जो बात है हक है, पहले अपने घर वालों को भी बतानी चाहिए। तो कहना माना करो। मैं काम की जो बात बताने जा रहा था, इतनी अच्छी बात है, गांठ बांध कर ले जाना इस बात को। बच्चों सुनो, तुम लोग चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी चाहता हूं। इसीलिए सब जगहों पे जाते हैं, बुजुर्गों में जाते हैं, मज़ार शरीफ पे जाते हैं, हर जगह जाते हैं। जाना चाहिए, मगर मज़ार शरीफ पे मैं तकरीर में बताता हूँ, मर्दों का जाना जायज़ है, इन औरतों का जाना जायज़ नहीं। तमाम इबादतों में सबसे ज़्यादा अहम इबादत क्या? नमाज। और तमाम जगहों में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मस्जिद। औरत को मस्जिद में जमात के साथ, मर्दों के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, रोक दिया गया, जबकि कितना अच्छा काम है। सबसे अच्छी जगह मस्जिद, सबसे अच्छी इबादत नमाज, उसको रोक दिया गया। क्यों? मर्दों औरतों का इख्तिलाफ। मज़ार, अल्लाह के वली के मज़ार पर रहमत बरसती है, वहां पर जाना सुन्नत है, और मस्जिद में नमाज फर्ज है। मस्जिद में नहीं, मतलब नमाज फर्ज है, और हाजिरी क्या बोलो? सुन्नत है। तो फर्ज के लिए, फर्ज अदा करने के लिए मस्जिद में जाने से रोक दिया, तो सुन्नत अदा करने के लिए जाने की इजाजत कौन देगा भाई? सोचने की बात है। क्यों? इसलिए ताकि बुराइयां ना फैले, मर्दों औरत आपस में ना टकराएं, एक दूसरे की आंखें ना लड़ें, बुराइयों का दरवाजा ना खुले। ये चैनल वाले हैं, बात खुल जाती है मगर हकीकत आती है। बार बार मज़ार पे 50 पेशी खेलने वाली लड़की लड़के, मोबाइल चलाने वाले, उन पे कोई हवा डवा नहीं है, सिर्फ हवा डवा का बहाना, एक दूसरे से मिलने जाते हैं। मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मोबाइलों पे बात हो रही है,
घर वालों को धोखा दिया जा रहा, घर वाले समझ रहे हैं डॉक्टर से भी ठीक नहीं हो रही है, किसी से ठीक नहीं हो रही है। वहां जाके आधा घंटा उसने पछाड़े खाई और बराबर में गई, अभी तक तुम आए नहीं, कहां रुक गए? ये चल रहा। ऐसी जगह जाने से बहन बेटी को रोको। समझ में आ रही? तो अब मैं जो बता रहा था कि दुआएं कबूल हों, मज़ारों पे दुआएं कबूल होती हैं, मस्जिदों में दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह वालों के पास दुआएं कबूल होती हैं, नेक लोगों के पास दुआएं कबूल होती हैं। मगर एक जगह मैं ऐसी बता रहा हूं जो हदीस से साबित करूंगा कि तुम्हारे लिए अगर दुआ हो जाए तो सही बता रहा हूं बेड़ा पार हो जाएगा। बता दूं वो जगह कौन सी है? मज़ार शरीफ और ये सब अच्छे मकाम, इन जगहें दुआएं कबूल होती हैं। मगर एक जगह वो है, और वो जगह कहीं हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। सुभान अल्लाह। वो क्या है बोलो? माँ बाप। तुम्हारे माँ बाप है। अगर माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, और वो माँ या बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से अगर उठा करके तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मेरी दुआ साबिर पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ गौसे पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ साबिर पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ मखदूम पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ गरीब नवाज की तरह नहीं, इनकी दुआ वारिस पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ शाह बदियुद्दीन साहब की तरह नहीं, किसी की दुआ अल्लाह वाले की तरह नहीं, मगर माँ बाप की दुआ नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी जी। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत वालिदैन, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। साबिर पाक गौसे पाक की तरह नहीं, नबी की तरह अगर किसी की दुआ है वो तुम्हारी माँ और बाप। क्या बात है, वाह। ये नबी ने फरमाया, हदीस पढ़ी, दुआउल वालिदैन, माँ बाप की दुआ, अन औलादिहिमा का दुआ नबी जी, उन दोनों की औलाद के हक में नबी की दुआ की तरह होती। बेशक बेशक हक है। और एक बात और बता दूं, अगर दुआ होती है तो बद्दुआ भी ऐसे ही होती है। हाँ, नाफरमानी मत कर बैठियो। ये छोटी छोटी बच्चियां माँ का कहना नहीं मानती, माँ कहती है बेटी ऐसे कर ले वैसा कर ले, मुंह चुड़ा के भागती है, मोबाइल को लेके पड़ जाती। मेरे लाल मेरी बच्ची, आज के बाद कभी माँ का कहना मत टालना, माँ का कहना मत टालना। हजरत जुनैद बगदाद, वो हजरत बायजीद बुस्तामी 12 साल 20 साल जंगल में इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, इबादत करते रहे। वो करामत, वो विलायत नहीं मिली। एक दिन माँ ने सीने से लगा के आंखों से आंसू निकाल के हाथ उठा करके दुआ कर दी। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते 12 और 20 साल मुझे जंगल में वो नहीं मिला जो माँ की दुआओं से 2 मिनट में मिला। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? बेशक। और एक और सुनो, नबी फरमाते जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप का गुस्ताख है, जो माँ बाप को झिड़कता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोज़े कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, निज़ामत कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। जिसके माँ बाप जिससे नाराज़ है, जो माँ बाप को सताता है, उसका नबी भी उनसे नाराज़, खुदा भी नाराज़, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। अल्लाहु अकबर। समझ में आ रही है? बस मेरी बहुत तबीयत खुश हुई है, बच्ची ने यहाँ पे पढ़ा, बच्चों ने पढ़ा, तुम भी अपनी बच्चियों को पढ़वाओ, तुम भी अपने बच्चों को पढ़वाओ। आज से ही, कल से ही कंट्रोल शुरू कर दो। छोटो बड़ों की इज्जत करो, बेशक आलिमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो। क्या बात है, वाह। किसी जुज़दान में कपड़े में कुरान रखा होता है, जी। उस कुरान, उस कपड़े को तुम बुरा नहीं समझते हो,
चूमते हो, सर पे रखते हो, तो ये हाफिज इमाम हैं, इनके सीने में कुरान है, ये कुरान का कपड़ा है, कुरान का जुज़दान है, कुरान की पेटी है, इनके हाथों को चूमो, अदब करो, इन्हें मोहब्बत से देखो, तो तुम्हारा देखना भी सवाब होगा, तुम्हारा प्यार करना भी सवाब होगा। ये वो लोग हैं आलिम, नबी ने फरमाया अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से ऐसे ही गुजर जाएं, टहलते हुए निकल जाएं, खाली गुजर जाएं, कुछ पढ़े नहीं, दुआ भी ना करें, नबी ने फरमाया खाली गुजर जाएं, तो इस आलिम के गुजरने की बरकत से अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है, अजाब। और जो इमाम तुम्हारे लिए फजर में दुआएं करे, ज़ोहर में दुआएं करे, मगरिब में, असर में दुआएं करे, मगरिब में दुआएं करे, इशा में दुआएं करे, और तुम उसी इमाम के लिए बुरा सोचो, उसी इमाम की बुराइयां करो, उसी इमाम में कीड़े निकालो, उसी इमाम में, तो फिर हमसे ज्यादा बुरा कौन होगा? किसी प्रधान को अगर चुनता है ना, तो गांव चुनता है, समाज चुनता है, मोहल्ले के लोग चुनते हैं, बस्ती के लोग चुनते हैं, तो जाकर के उसे प्रधान बनाते हैं। मगर इनको ये हाफिज हुए, कारी हुए, आलिम हुए, दीन के सिपाही, किसी प्रधान गांव बस्ती ने नहीं चुना, इनको मेरे रब ने चुना है, मेरे अल्लाह ने चुना है, मेरे मौला ने चुना है। तो समझो जिसे अल्लाह ने चुना हो, अगर उसे गिराओगे तो सीधी लड़ाई अल्लाह से, सीधा झगड़ा अल्लाह से। अगर समझ लो इन बातों को, तो ऐसे कुरान को पीट नहीं करते हो, कुरान की बेअदबी, कुरान के कपड़े की बेअदबी, रहल की बेअदबी नहीं करते हो, ऐसे हाफिज कुरान की, इमाम की बेअदबी मत करो। हाँ, अगर किसी इमाम से कोई गलती हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुरान पे कोई छींट गिर जाए तो उसको तुम गटर में फेंक दोगे, माज़ल्ला नाली में फेंक धोगे, साफ करोगे, फिर चूमोगे, सीने से लगाओगे। ऐसी कोई इमाम, वो भी तो इंसान है ना, कोई फरिश्ता थोड़ी है, मासूम अनिल खता थोड़ी है, उसके बीबी बच्चे हैं, उसके पास भी नफ्स है, उसका भी दिमाग है, हो सकता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो उसकी ऐसे इस्लाह करो, ऐसे इस्लाह करो कि इस्लाम पे छींटना आए, समझे, दीन पे छींटना आए, दाग धब्बा ना आए, और जो उसके सीने में दिल है उसमें कुरान है, जबान से उसने कुरान पढ़ा, आंखों से कुरान पढ़ा, इस अंदाज में कि कुरान का वर्क ना फटे, इस अंदाज में इसका दिल ना टूटे, इसके दिल की झिल्लियां ना फट जाएं, समझे, इसके दिल को नाराजगी ना हो, इस अंदाज से इस्लाह करो, इस अंदाज से इस्लाह करो कि इस्लाह भी हो जाए और एक हर्फ इस्लाम की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। एक बूढ़ा था, एक बुजुर्ग था, वुजू गलत बना रहा था, हसन हुसैन दोनों भाई मौजूद थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सैयद हूं, आले रसूल हूं, मैं नबी का बुढ़े वुजू संभाल ले, वुजू से बुढ़ा हो गया, तुझे ढंग नहीं आया, वुजू कर, ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया। जबान तो देखो, दोनों भाई आए, बोले चचा वुजू बनाया आपने ना, हम दो भाई हैं, एक भाई ऐसा है जो नबी की तरह वुजू बनाएगा और एक ऐसा है जो नबी के खिलाफ वुजू बनाएगा। तुम हमसे बड़े हो, बुजुर्ग हो, अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम फैसला कर देना हम में से वुजू किसका अच्छा है, जो नबी की तरह बनाए उसका, जो नबी की तरह नहीं बनाए उसका। तो एक भाई ने ऐसा वुजू बनाया जैसे वुजू बनाने का तरीका, और एक ने ऐसा बनाया जैसे चचा ने बनाया। तो बोले बेटा ये बताओ नबी की तरह किसने बनाया? बोले इन्होंने बनाया। तो बोले यार सबसे अच्छा वुजू नबी का तो ही होगा, सबसे अच्छा वुजू नबी का, इनका वुजू अच्छा है। और दिल ही दिल में कहने लगे अच्छा हुआ मैं नहीं पकड़ा गया, और क्या पता था तुम्हें ही संभाला जा रहा अच्छा हुआ मैं नहीं पकड़ा गया, आज के बाद मैं भी ऐसे ही वुजू बनाऊंगा जैसे नबी। कितनी प्यारी इस्लाह हो गई यार, कितनी अच्छी इस्लाह हो गई। और तुम कोई इमाम गलती का चौराहे पे खड़े होकर मजे ले रहे, अरे भाई ऐसा हो गया, भाई ऐसा हो गया। भाई इमाम अगर फर्ज पढ़ाने चला गया, तुम्हारे यहाँ फातिहा पढ़ने नहीं गया, तो दो आदमी बोले यार ये इमाम ठीक नहीं। बोले क्यों? वहां खड़ा था, वहां खड़ा था, ऐसे कर रहा था, खाली मूली वैसे कर, कोई नहीं देख रहा, तुमने निकलवा दिया, अल्लाह तो देख रहा। हश्र के मैदान में अगर तुम्हें निकाला गया तो क्या करोगे? क्या बात है, कहाँ जाओगे? तभी तो आला हजरत बोले आज ले उनकी पनाह। क्या बात है, आज आज आज
आज जी, ले जी। उनकी पना, आज आज मदद मदद मांग मांग उनसे, उनसे। फिर ना मानेंगे अगर कयामत में मान गया। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मेरी इन बातों पे अमल करोगे? इंशाअल्लाह, सब लोग हाथ उठा के बोलो, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, रखो। आज के बाद किसी को सताना नहीं, इंशाअल्लाह, तकलीफ मत, इंशाअल्लाह। अपनी जात से ना किसी जानवर को भी तकलीफ मत दो, इंशाअल्लाह, किसी कीड़े को भी तकलीफ मत दो, इंशाअल्लाह। तो तुम्हें तमाम तकलीफों से अल्लाह बचा देगा। बेशक। मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूँ इस्लामी रिश्ते का। आज के बाद पूरे कपड़े पहनना, अपना चेहरा ढकना, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान पाक रोज़ाना पढ़ना, शौहर की खिदमत करना, सास ससुर की खिदमत करना, शौहर के जितने रिश्तेदार हैं उन सबको अच्छे से डील करके चलना। और तुमसे भी कह के जाता हूँ, बीबी को मारना मत। बाज़ आदमी बहुत बदतमीज़ है, बीबी को मारता है, गालियाँ बकता है, उसकी माँ की गाली, बहन। अरे यार, जिस लड़की ने, जिस औरत ने सर से लेकर मुफ्ती साहब पाँव तक पूरा वजूद तुम्हारे हवाले कर दिया, कितना बदतमीज, कितना नाशुक्रा इंसान होगा जो उसकी बहन को गाली बके, उसकी माँ को गाली बके। और फिर तुम कहते हो हम अपनी बीवी से प्यार कर रहे हैं। तुम सोने में गाड़ दोगे ना, सोने में घी में उसे ढाल दोगे, तब भी तुमसे खुश नहीं हो सकती जो उसकी माँ को गाली देगा, बहन को। बाज ये समझता है मैं मर्द हूं, बीबी को गाली दे लूं। मैं समझता हूं मर्द नहीं है, वो बदतमीज है, वो नाअहल है, नाअहल। कभी मौका मिला तो इस पे सुनाऊंगा, रो जाओगे। नबी ने शादी की है, मालूम है इसलिए शादी की थी ताकि मेरे उम्मतियों को शादी करने के बाद जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए, ढंग। तुम्हें क्या पता होता है? अरे तुम तो अपने घर में हो, 5 साल अगर कुत्ता रह ले वो भी घर को छोड़ना पसंद नहीं करता है। ये लड़कियां छोटी छोटी भाइयों से लड़ जाती हैं, अपने बाप से जिद करती हैं, माँ से जिद करती हैं, घर में ऐसा कलर होगा, बाप भी इन्हीं का साथ देता है, ऐसा कलर होगा, मैं ये खाऊंगी, मैं पीऊंगी। इन्हें क्या पता था 20 साल के बाद दूसरी जगह जाना है। एक लड़की को ससुराल चलाना आसान नहीं है, फैक्ट्री चलाना आसान है, मगर ससुराल में जाकर के उसे चलाना आसान नहीं है। आप जानते हो, पता नहीं रोती है रो, पता नहीं देवर कैसे मिजाज का हो, जेठ कैसे मिजाज का हो, नंदोई कैसे मिजाज का हो, देवरानी कैसे मिजाज की हो, सास कैसे मिजाज की, ससुर कैसे, पूरा एक खानदान इससे पूछो। अरे इसके दिल से पूछो, तुम्हारी माँ से तुम्हें जुदा कर दिया जाए, बाप से जुदा कर दिया जाए, ये अपने भाइयों के साथ खेलती थी, बहनों के साथ खेलती थी, इसकी घर में चलती थी। लेकिन आज 20 साल के बाद डोली में बैठ के माँ को छोड़ के तुम्हारे यहाँ आ गई, बाप को छोड़ के तुम्हारे यहाँ आ गई। इसके भाई थे, फूलों की तरह रखते थे इनको, इन्हें छोड़ के तुम्हारे घर आ गई। बहन को छोड़ के भतीजे भतीजियों भरा घर, जहां इसी की चलती थी, इसी की, ये छोड़ के तुम्हारे घर आ गई। अरे बदतमीज इंसान, वो जो गाली बकता है उसको कह रहा हूं, तुम्हारी गाली सुनने के लिए आई है, तुम्हारे ऑल फॉल सुनने के लिए आई। अरे इसके दिल को टटोलो, इसके दिल को ढूंढो। 1 साल की बच्ची को थप्पड़ मार दे तो तुम लड़ जाओगे, लड़। इसके बाप से पूछो, 20 साल की दी है बाप ने, 22 साल की दी है, और तुम उठा के गालियां बकने लगे। उससे बड़ा बदतमीज इंसान मेरी नजर में हो ही नहीं सकता जो अपनी बीवियों को गालियां बकता। मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं हक बोल के जाता हूं, समझ में आ रही? हक बोल के जाता हूं। मेरी छोटी सी बच्ची है, खूबसूरत है, सीने पे चढ़ जाती है। 8 दिन अगर मैं तकरीरें करके आता हूं, थका हुआ होता हूं, सीने पे चढ़ जाती है, सारी थकावट मेरी दूर कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मगर आंसू निकल आते, रो पड़ता हूं मैं। तहज्जुद के बाद या नमाजों के बाद उनके लिए दुआएं करता हूं बच्चियों के, मौला इसका घर ऐसा देना, ऐसा देना, ऐसा देना कि इसे गाली सुनने का नंबर ना आ जाए। क्योंकि बाज बहुत हजरत बदतमीज शौहर मिल जाता है, बहुत ज्यादा। 50 लड़कियां बहुत ज्यादा दुखियारी हजरत, बहुत ज्यादा दुखियारी। अरे फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हुआ, ये गाली सुन रही है। लाइट चली गई, ये गाली सुन रही है। खेत में घास पैदा हो गई, अजीब बेवकूफ है। अपना काम अच्छा नहीं चल रहा है, गाली सुन रही। अच्छा खासा रह रहा, अगर भैया आ गया तो मुंह टेढ़ा करे हुए घूम रहा।
कोई मैके वाला आ गया मुंह टेढ़ा, तू उसके घर में जाके 8-8 दिन ससुर है, अपनी बेटी को नहीं पूछ रहा, तुम्हें मुर्गा खिला रहा, और ये दामाद मुंह टेढ़ा करे फिर रहा, रेल बनाए फिर रहा। पहले शादी हो गई थी बेचारी, उस वक्त इतनी कमाई नहीं थी, बाप अकेला था कमाने वाला, उसने मोटरसाइकिल दे दी या नहीं दी। अब जो थे उसके भैये हुए छोटी बहन के लिए, कोई बंबई कमा रहा, कोई दिल्ली कमा रहा, कोई कुछ कमा रहा, तो अब तो अपनी बहन को मोटरसाइकिल दे रहा है, कार दे रहा है, तो ये बड़ा वाला दामाद ऐटा फिर रहा, छोड़ दूंगा, पहले मोटरसाइकिल यहाँ दे दे, डूब के नहीं मरा गया। जिसने अपनी बेटी दे दी सब कुछ दे दिया। कितना बड़ा भिखारी है, कितना बड़ा नंगा, मस्जिद के गेट पे कटोरा लेके भीख मांग ले। तोबा तोबा, ला हौला वाला। हजरत टेढ़ा फिर रहा, टेढ़ा जाता ही नहीं ससुराल को, उसके भैया की शादी है, इधर घर में हंगामा, कह रहा छोड़ दूंगा वरना मोटरसाइकिल यहाँ, कार यहाँ। बिचौलियों ने, बाप ने, चचा ने, ताऊ ने समझा दिया तो टेढ़ा घूम रहा, बोले इसे ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तेरे बगैर तेरी बीबी रह लेगी क्या? उसे अच्छा लगेगा दुनिया के लोग खा रहे हैं, उसका शौहर नहीं है। और अगर चला भी गया तो उधर खड़े मुंह सुजा हुए, उधर खड़े, बच्चियां कह रही हैं भाई ले लो, भाई हटो हटो, टेढ़ा कहीं का, मुझे मिल जाए थप्पड़ याद रख के। इस्लाम के पहचानो, तौर तरीके को पहचानो। हक बयान है बिल्कुल। आज 50 लड़कियां खून के आंसू रो रही हैं, खून के, इंसान होके जालिम। इंसानियत पैदा करो अपने अंदर। अरे यार वैसे कह रहे हो बीबी हमारी जान है, दिल का टुकड़ा, ये दिल का टुकड़ा है कि हमारा कलेजा है, हमारा कुछ भी नहीं, झूठे हो। अपने अंदर मोहब्बतें पैदा करो। जो लड़की, जो औरत अपने सर से पांव तक सारा वजूद तुम्हारे हवाले है यार, फिर भी अभी तक इंसान नहीं बना। और अगर यही बाज दामाद हैं ऐसे, छोटी साली को बहन की तरह समझते हैं और ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम ये भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो वो सास की आंखों में आंसू होते हैं और रो रो के दुआ करती है, अल्लाह मेरे जैसा दामाद हर एक को अता कर दे। है नहीं मौलाना हाशिम साहब, इन्हें तजर्बा हो गया, समझ, हर हफ्ते ससुराल जाते हैं। अच्छा वो मेरे स्टाफ के हैं इसलिए मैंने मजाक में कह दिया। मुफ्ती साहब कह रहे हैं रोजाना जा रहे हैं, इतना भी मत जाइयो यार, ऐसे थोड़ी है यार। उसने बेटी दे दी है, थोड़ी दे दिया, तुम्हारा भी पालने का ठेका ले लिया। सुबह को नाश्ता हुई करो, दोपहर को हुई करो। तो ये एक पढ़े लिखो की आपस की मजाक थी, बोल दिया। बहरहाल तवज्जो है ना, इन बातों पे ख्याल रखना। यार तुम खुद सोचो, तुम्हारी बेटी है, तुम्हें कितनी अच्छी लगती है, लगती है नहीं लगती? कितनी छोटी छोटी बातें करती है। अब ये बड़ी हो जाएगी तो कितनी अच्छी लगेगी। उस बाप को देखो, अपनी बेटी को लिए घूम रहा है, हजरत हजरत बस बिस्मिल्लाह पढ़वा दो, हजरत मेरे पास इतने फोन किए जिनके आप प्रोग्राम, हजरत मेरी बेटी को बिस्मिल्लाह पढ़वा दो। अब कल को अल्लाह ना करे अगर किसी की बेटी को गालियां सुनने मिले, क्या होगा उस बाप का? तुम्हें जहां तक मेरा पैगाम ये पहुंचे पहुंचा दियो। आज के बाद अपनी नफरतें दूर करो यार। अल्लाह देने वाला अल्लाह तुम्हें अपने घर से देगा, दर से देगा मेरा मौला। और आधी रोटी खा लो, ओ बच्चों आधी रोटी खा लो मगर खुशी से। मेरी बहनों से भी कह के जाऊंगा, तुम इन्हें टेंशन मत देना, समझे? आपस में मेल मोहब्बत प्यार, ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो, लगे यार घर में जन्नत की बहारें। सैयदा फातिमा और हजरत अली जैसी जिंदगी गुजारो। बेशक, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, माफ करना। अगर हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, पहले तौबा पढ़े मेरे साथ में, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।